एक्सेल के बारे में जानेंगे। A lot of things will be discussed with you. Everything is okay. So I am using this website which name is W3S Schools. It provides tutorials of a lot of I am using currently MS Excel because I want to discuss MS Excel in this session. That's why. Apart from this MS Excel, there are a lot of things that can be learned. For example, React, MySQL, Python, Java, this, that, programming language, HTML, CSS, you can learn from this website. And this is believable. You can trust on it. So I opened this MS Excel, and in one side is our website, not my, but W3R School's website name is. I will help of this website and then I will tell you so that it can go series by you can say or in sequence. So let's start first of all with home Excel home. Excel home. So just we started. So it is saying Excel is the world most used spreadsheet program. यानी Excel वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला spreadsheet प्रोग्राम. Excel is a powerful tool to use for mathematical function. आप यहाँ पर एक पढ़ाई की तरह देखेंगे, ना कि एक एडिटिंग वीडियो एडिटिंग की तरह. एक पढ़ाई की तरह वाइब जो आएगा वो एक एनवायरमेंटल आएगा वो स्टडी की तरह आएगा. So this is a powerful tool to use for mathematical function. You can get Excel certified from this website. So example in each chapters, our example let you copy values into okay. This is not for us. This was just introduction about. So what is Excel? Excel is a pronounced Excel. Okay, it is a spreadsheet. If someone asks you what is Excel, you can say it is a spreadsheet. A spread means panna, sheet means sheet. Program it was developed by Microsoft and Excel organized data. ये data को organize करता है in columns and rows and allows you to do mathematical function. आपको allow देता है mathematical function लगाने के लिए. It runs on Windows. ये Windows पे भी रन करता है, Mac OS पे रन करता है, Android पे भी अवेलेबल करा दिया गया और iOS पे भी. लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज हो गया, मैक ओएस और एंड्रॉयड और आईओएस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये एक्सेल स्प्रेडशीट अवेलेबल है. द फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन 1985. जो इसका फर्स्ट जो कि बहुत ही इनिशियली वो 1985 में रिलीज किया गया था. हैज़ गॉन और चला था थ्रू सेवरल चेंजेस ओवर द इयर्स. और इसी तरह ये चेंजेस आता गया. फिर जैसे जैसे वर्जन आया तो इसका मतलब चेंजेस आता गया. वर्जन आने का मतलब चेंजेस अपडेट होना. हाउएवर द मेन फंक्शनैलिटी मोस्ट रिमेन्स सेम. हालांकि जो मेन फंक्शनैलिटी है मोस्टली वो सेम ही रहता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं. एक्सेल इज अ टाइप. होल्ड ऑन व्हाट टाइप. Okay, so everything is okay.
आई वाज टॉकिंग कि एक्सेल इज अ टाइपिकली यूज्ड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है, डाटा एंट्री के लिए, डाटा मैनेजमेंट, यहाँ पर हम डाटा मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, डाटा एंट्री भी कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज भी किया जा सकता है, और अकाउंटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, बजटिंग के लिए भी, डाटा एनालाइज करने के लिए, विजुलाइज या ग्राफ बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग करने के लिए, एंड मच मच मोर, बहुत ज़्यादा है चीज़ में किया जाता है, और सभी क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। एक तरफ से ये प्रोडक्टिविटी टूल्स ही है। वाई यूज एक्सेल, एक्सेल को यूज क्यों करें, तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। हालांकि हाउएवर इसके अल्टरनेटिव्स आए हुए हैं, लेकिन अगर ये अवेलेबल है, इफ़ यू हैव दिस एम एस एक्सेल which was which which was developed by Microsoft team, then this will be, I would say, you have a best chance because this is available uh, in your device. That's why I would say it's your best chance to learn or to use if this is available in your system. Okay. Otherwise, you have another option, alternative of MS Excel you can use. If you don't want to pay it, then we have alternate option of this MS Excel that are available on websites. You can install whatever. Even you want, yeah, one more thing. 365 for MS Office is available on is available. Uh, this is available uh, free on web. Okay, web. You can use free 365 MS Office on browser, not buy and store. Just you can use free MS Office 365 on browser. Yeah, it is internet is required. So I was talking कि yeah, it is the most powerful popular spreadsheet program in the world. It is easy to learn. हम इसे इसलिए यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस इज, बहुत ही आसान है इसे यूज करना और इसे स्टार्ट करना भी। इसका इंटरफेस बिल्कुल ही फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली। The skin selling is a high, which means that you can do more advanced things as you become better. जैसे जैसे आप बेटर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप सेल्स में और मतलब और अच्छे अच्छे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और बेटर से बेटर डाटा क्रिएट कर सकते हैं, डाटा बना सकते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता है। इट कैन बी यूज्ड विथ बोथ वर्क, हम वर्क में भी अपने जैसे ऑफिस वगैरह में भी यूज कर सकते हैं और हमारे जो डेली लाइफ में छोटा मोटा काम होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं, सच एज टू क्रिएट a फैमिली बजट, जैसे कि फैमिली बजट के लिए तो ये डेली लाइफ डेली लाइफ का काम। इट हैज़ यूज कम्युनिटी सपोर्ट, इट इज continuously supported by Microsoft. टेम्पलेट्स एंड फ्रेमवर्क्स कैन बी रीयूज। इसमें टेम्पलेट्स और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल करवा दिया गया है जिसे हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं फॉर आवर से। हम अगर आइडियाज लेना चाहते हैं या फिर बिगिनर हैं, for different person we for different purpose we can use the templates and frameworks which are available as a presets in this. Okay, in this, then a okay, uh, get started. Start there. This tutorial will teach you the basics of Excel. It is not necessary to have any prior मतलब कि बहुत डिसेंट, बहुत मतलब थोड़ा बहुत पहले थोड़ा बहुत ज्ञान आता हो, थोड़ा बहुत जानते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें पता होना चाहिए, पहले से एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड पर। Okay. So this was just I would say it was just introduction. Now let's get started. So it is telling you how to install 300, not to install, but you can use this Office 365 on browser. Even free, it is available free on browser. When it comes to browser, it means this Office 365 is a free.
How can you install? Once you have a successfully logged into Office through this website, then click on the Excel icon on the left side to the enter application. After entering, this is a process to get installed. So one thing, let's make a function. For example, this is known as A1, this is A2, this is A4, and this is B4, C3. Okay. So here A1, the one that is marked with the green rectangle in the picture. सेकेंड टाइप, जिसे इसमें हम टाइप करते हैं पहले इक्वल का साइन कंपलसरी, बिकॉज यू कैन से कि दिस इज अ सिंटैक्स की तरफ से फंक्शन ऐसे स्टार्ट होता है इससे। तो इक्वल का साइन और डाउन, इक्वल का साइन, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करना 1+1, जैसे इंटर मारे काम ये अपना वैल्यू रिटर्न करके देगा। ये इस तरह फंक्शन काम करता है। जैसे मैं अगर देखो इक्वल 22 -2, इस तरह डिफरेंस का भी काम करता है। थर्ड हिट द एंटर, पहले हमें सेल को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद हमें टाइप करना होगा, फंक्शन यूज करना होगा, फिर उसके बाद एंटर मारेंगे तब हमें वैल्यू प्राप्त होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव टाइप्ड ऑन योर फर्स्ट फंक्शन हमने सीखा किस तरह यूज होता है। ओके, सो नाउ ओवरव्यू है कि दिस चैप्टर इज अबाउट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ एक्सेल का ओवरव्यू देने के लिए दिस चैप्टर वाज प्रोवाइडेड। एक्सेल्स स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ 2 पीसेस, एक रिबन और एक सेट। ऊपर साइड में इसे रिबन बोलते हैं और इसे सेट बोलते हैं। हैव अ लुक एट द पिक्चर बिलो, इसमें देखो ये जैसे ये है, ये जो पार्ट है इसे हम रिबन बोलते हैं, कम्प्लीटली ये रिबन है। और ये जो नीचे है ये शीट है, यहाँ पर 2 पार्ट दिख रहा है। तो ये मिक्स एक्सेल 2 पार्ट से बना हुआ है, एक शीट और एक रिबन से। जो वर्क शीट में होगा विद द हेल्प ऑफ रिबन होगा। तो द रिबन इज मार्क्ड विद अ रेड रेक्टेंगल एंड द शीट इज मार्क्ड विद अ येलो रेक्टेंगल। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग द रिबन। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, पहले लेट्स गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिबन। तो रिबन प्रोवाइड्स शॉर्टकट्स। रिबन क्या करता है, वो शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है टू एक्सेल कमांड के लिए। जैसे कमांड इज एन एक्शन, एक कमांड क्या होता है, एक एक्शन होता है दैट अलाउस यू टू मेक समथिंग हैपन। जब हम एक कमांड देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसा हम चाहते हैं, जैसे मैंने जो हमने कमांड दिया उसका एक्शन होना चाहिए। इसी का काम होता है कमांड मतलब एक्शन, है ना। तो दिस कैन फॉर एग्जांपल बी टू इंसर्ट अ टेबल। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये कमांड होगा, मैंने इंस्ट्रक्ट दिया, मैंने कहा है कि एक इंसर्ट अ टेबल। तो इसका मतलब मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि एक टेबल इंसर्ट करो, या फिर एक कमांड दे रहा हूँ एक तरफ से। तो मैं माउस का यूज करके या फिर कीबोर्ड का यूज करके मैं एक तरफ से कह सकता हूँ कि कमांड चेंज द फॉन्ट साइज। जैसे हम फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, जैसे ये है 20 है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि रेड हो जाए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसका मतलब वो एक तरफ से कमांड किया, कमांड ना, यानी ये एक्शन करेगा कमांड देने के बाद। ठीक है, हम इस तरह साइज भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 20 है, इस तरह साइज बढ़ सकता है। Got it? What much more apart from this? ठीक है, उसके बाद रिबन में लुक क्राउडेड। रिबन थोड़ा बहुत ये जैसे बहुत भीड़ भड़ाका जैसा लग सकता है, हाँ लग ही रहा है। तो द रिबन इज मेड अप ऑफ, अच्छा, लुक क्राउडेड एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट। फर्स्ट टाइम अगर यूजर देखेगा तो कंफ्यूजन जैसा भी क्रिएट होगा, या फिर उसे हार्ड लगेगा कि बहुत सारा है, कंफ्यूजन मतलब ये क्या है, वहाँ भुला देना, ये इतना सारा कैसे याद रखना, ऐसा ऐसा सवाल आ सकता है फॉर इन, अगर वो बिगनर है।
डोंट बी स्कैर्ड, ऐसा टाइम में स्कैर्ड नहीं होना. इट विल बिकम ईजियर टू नेविगेट एंड यूज एज यू लर्न मोर. जैसे जैसे आप लर्न करोगे मोर दिस अबाउट दिस एक्सेल, you you will learn a lot of things. Then it will be uh, it will be becoming more easy to you as you will navigate and apply. Yeah, you can say, yeah, apply. Most of the time we tend to use the same functionalities over again. हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसे बहुत सारे ऐसे फंक्शनलिटीज है जिसे हम बार बार यूज करते हैं क्योंकि वो कॉमन होता है, कॉमन रहता है. The ribbon is made up by the app launcher, tabs, groups and commands. जो रिबन है उसे बनाया गया है किसके द्वारा? ऐप लॉन्चर के द्वारा, टैब्स के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा और कमांड्स के द्वारा. इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिबन. इस सेक्शन में अच्छा यहाँ पर देखो, ये ऐप लॉन्चर है. जो रिबन है उसमें क्या क्या है रिबन में? रिबन में ऐप लॉन्चर होगा, टैब्स होगा, ग्रुप्स होगा, कमांड्स होगा. तो इस सेक्शन में हम पार्ट्स ऑफ रिबन को देखें. तो जैसे ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट फर्स्ट इसको बोलते हैं ऐप लॉन्चर. ऐप लॉन्चर, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल बताता है कि कौन ऐप है. एक तरह से बोल सकते हो सॉफ्टवेयर क्या है, कौन सॉफ्टवेयर, तो हम इससे पहचान सकते हैं. तो इससे बोलते हैं ऐप लॉन्चर, एक तरह से बोलते हैं. इसकी बात हो रहा है, ठीक है. तो टैब्स क्या है? टैब्स शायद इसके बात हो रहा है. फाइल, इंसर्ट, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट. ऐसा तो हम लोग आमतौर पर मेन्यू बोलते हैं, लेकिन टैब्स ही बोल रहे हैं तो टैब्स. फिर उसके बाद ग्रुप्स होते हैं, जैसे इसको हम सेक्शन एक तरफ से बोलते हैं, तो इस तरह को ग्रुप्स बोला जाता है इस लैंग्वेज. और कमांड्स वगैरह, कमांड्स ये अब देखते हैं व्हाट डज इट एक्सप्लेन. ऐप लॉन्चर क्या है? द ऐप लॉन्चर आइकन, द ऐप लॉन्चर इज एन आइकन has 9 dots. कितना dots? 9 dots and is called the Office 360 navigation bar. 9 dots बात कर रहे हैं. It allows you to access the different parts of the Office 365 suite, such as Word, PowerPoint, and Outlook. App Launcher can be used to switch seamlessly between the Office 365. एक तरफ से कह सकते हैं कि जैसे ऑफिस 365 में बहुत ही बहुत और भी और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें से हम पहचाने कैसे कि हम किस में वर्क कर रहे हैं. तो उसके लिए आइकन यहाँ पर दिया जाता है. जैसे यहाँ पर आइकन है, ये MS एक्सेल का, तो हम इस तरह पहचान सकते हैं. फिर उसके बाद टैब्स है. द टैब इज ए मेन्यू, या ये जो टैब है ये मेन्यू ही कहा जाता है एक तरफ से, विद सब डिविजन्स stored in two groups. The tabs allow user to quickly navigate between option of menus which display different groups of functionality. एक तरफ से कह सकते हैं ये टैब या फिर मेन्यू, इसमें अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं टूल्स, जो यूज़र को रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपना क्लिक कर सकता है कोई भी टैब्स. The group है, the groups are sets of related commands. The groups are separated by the theme vertical line break. Commands क्या है? The commands are the buttons that you use to do action. Now let's have a look at the sheet. Soon you will be able to understand the relationship between the ribbon and the sheet. बहुत ही जल्दी हम different relation देख पाएंगे ribbon और sheet में. And you can make things happen. The sheet explain. The sheet is a set of rows. इसे हम सेट बोलते हैं. इस चीज को हम सेट बोलते हैं. जैसे सेट नंबर 1 है, इस तरह हम सेट और भी क्रिएट कर सकते हैं. या फिर एक तरह बोल सकते हो वर्कशीट, क्योंकि इस शीट में वर्क हो रहा है तो वर्कशीट बोल सकते हैं, या फिर शीट बोल सकते हैं. तो सेट क्या होता है कि शीट में हम देखते हैं ये रोज होता है, ये कॉलम्स होता है और ये रोज होता है. जो नंबर्स दिया हुआ है ये रोज को इंडिकेट कर रहा है, और जो ABCD दिया है ये कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है. तो सीट हम देख सकते हैं कि सीट
इसमें क्या क्या से बना हुआ है, एक रो से और एक कॉलम से बना हुआ है, जो कि सेल्स क्रिएट कर रहा है। ये सेल हो गया, बाकी सेल सेल। ठीक है, तो it forms the same pattern as we have in math exercise book. The rectangle box formed by the pattern are called cells. जो रेक्टेंगल, ये जो फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं सेल, इसको सेल बोलते हैं। ठीक, वैल्यूज कैन बी टाइप्ड टू सेल्स, वैल्यूज इसमें टाइप कर सकते हैं जैसे इस तरह, फॉर भी वैल्यूज 100 लाइक दैट। और बाय डिफॉल्ट ये इधर इधर राइट साइड में शिफ्ट होगा, ये नंबर राइट साइड में शिफ्ट होता है बाय डिफॉल्ट, और करेक्टर्स जो होते हैं लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है बाय डिफॉल्ट जैसे। ठीक है, वैल्यूज कैन बी बोथ नंबर्स एंड लेटर्स, या ये तो नंबर था और लेटर्स भी हो सकता है, जैसे स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। अब एक चीज यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर समझना है कि वैल्यू क्या क्या हो सकता है, नंबर्स हो सकता है और लेटर्स हो सकता है। एक चीज यहाँ पर देखने वाली चीज है कि ये वैसा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर क्या है कि ये ब्रेक कर जा रहा है, तो क्यों ना इसको उतना स्पेस दे दिया जाए और इक्वल जैसा लगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अगर यहाँ स्पेस बढ़ाना है तो यहाँ कॉलम से बढ़ाना है, यहाँ से भी बढ़ाया जा सकता है इस तरह, और यहाँ से बढ़ाया जा सकता है। तो स्पेस कितना कम कितना ज़्यादा हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये 100 नंबर वैल्यू और स्प्रेडशीट करेक्टर वैल्यू या फिर लेटर वैल्यू। ईच सेल हैज इट्स यूनिक रेफरेंस, हर सेल के पास अपना अपना यूनिक रेफरेंस है। ईच इज इट्स कोऑर्डिनेट, ये एक तरफ से कोऑर्डिनेट्स की तरह काम करता है। इसका लोकेशन अपना अपना एक यूनिक लोकेशन है। जैसे मैं इस सेल की बात करूँ तो इसका खुद का, जैसे मान लो D8 है ना, D8 है ही, तो D8, और जैसे यहाँ पर कहीं पे देखोगे तो D8 नहीं रहेगा बल्कि कुछ और होगा, यानी D8 सिर्फ एक टाइम्स आएगा। ठीक है, डी एट्स क्या है, एक सेल का लोकेशन है, एज अ कोऑर्डिनेट्स काम करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या करता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड करता है, एग्जैक्ट लोकेशन। उस तरह ये भी यहाँ पर सेल क्या कर रहा है, एक एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और इसका लोकेशन जैसे इसमें क्या है स्प्रेडशीट, तो यह स्प्रेडशीट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें क्या है 20, इसमें कोई फंक्शन यूज हुआ है या फॉर्मूला यूज हुआ है, तो क्या यूज हुआ है तो यहाँ पर देखा देगा। हम यहाँ पर जैसे यहाँ मैं टू मॉडिफाई कर सकता हूँ, मॉडिफाई, उसके बाद एंटर, यानी मॉडिफाई हम यहाँ पर कर सकते हैं स्प्रेडशीट इस तरह। हम इसको पूरा लेटर सेलेक्ट करेंगे, हम सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप वर्क करेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि कलर क्या, पहले हम बोल्ड बोल्ड करते हैं, जैसे बोल्ड हो गया जैसे। तो यहाँ मैं समझा कि रेफरेंस सेल का एक खुद का एक यूनिक रेफरेंस होता है, या फिर बोल सकते हो फ्रेम रेफरेंस। The reference of the cell is its coordinate. For example, C4 has the coordinates of column C and row 4 का है, इन column C का और row 4, इस तरह जैसे x, y होता है ना coordinates, coordinates multiple sets, you start with one set, हम अभी one set में by default तो हम one set से start करते हैं। when you create a new workbook, जब हम new workbook create करते हैं तो उसमें हम multiple sheets रख सकते हैं, और वर्कबुक इसीलिए क्रिएट किया जाता है ताकि हम मल्टीपल सीट्स रख सकें। अगर हमारे पास मल्टीपल सीट्स है या वर्क शीट्स है तो वो एक वर्कबुक में हम रख सकते। यू कैन हैव मैनी सीट्स इन अ वर्कबुक, न्यू सीट्स कैन बी एडेड एंड रिमूव, सीट्स कैन बी नेम्ड, सीट्स को नाम भी दिया जा सकता है, जैसे ये यहाँ पर क्लिक करो नेम कर दो, इस तरह हम
नाम भी दे सकते। ओके, इट easier to work with a data set. Are you up for the challenges? Let's create two new sets and give them. First, click the plus icon. प्लस आइकन यहाँ से क्या होगा, न्यू शीट क्रिएट होगा। ठीक है, शो इन द पिक्चर ब्लॉक, क्रिएट टू न्यू शीट्स। ठीक है, यू कैन यूज दी पोर्ट की, जैसे शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 से क्या होगा कि न्यू शीट क्रिएट, जैसे न्यू शीट क्रिएट, मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ, क्या नाम दूँ, प्रैक्टिस शीट। हम इसको कलर भी दे सकते हैं, कलर कलर, इसे कोई कलर दे दिया। कलर इसलिए और नाम रीनेम इसलिए ताकि हम आसानी से पहचान सके जब मल्टीपल सेट्स हो। सेकेंड, राइट क्लिक, इस तरह हम रीनेम कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। चैप्टर समराइज में क्या था, दी वर्क बुक हैज टू कंपोनेंट्स। वर्क बुक में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ये रिबन पार्ट और एक शीट पार्ट। इसको कंप्लीट को वर्क बुक कह रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट को वर्क बुक। इसको सिर्फ शीट बोलते हैं, इसको सिर्फ शीट बोलते हैं, और इसको रिबन, रिबन कुछ पार्ट से बना हुआ रहता है। तो अभी ये समझो, ये कंप्लीट क्या है, वर्कबुक है, और ये दो पार्ट से बने होते हैं, दो पार्ट, दो कंपोनेंट्स मिलकर बना, एक है रिबन और एक है शीट। फिर सेकेंड है, द रिबन इज यूज्ड टू नेविगेट एंड एक्सेस कमांड। तो रिबन है वो एज अ कमांड से भी यूज किया जाता है और नेविगेट करने के लिए। दिस सेट इज अ मेड अप ऑफ कॉलम्स। ये सेट जो है, इसकी बात हो रही है, ये किस किस से बने, कॉलम्स और रो से बने हुए, कॉलम्स और रोज, विच मेक्स अ सेल, जो कि एक सेल क्रिएट करता है। कॉलम्स और रोज से सेल क्रिएट करेगा। Each cell has its unique reference. You can add new sets to your workbook and name them. ये था summary. In the next chapter, you will learn more about the set formulas and ranges and functions. Okay, let's see next. Next is the syntax. Now I think we before this was basic, I would say. Now you are going to learn exact things that you should learn. Excel syntax, I would pronounce it like syntax. One letter, if you type wrong, it will not work, and that is what is known as a syntax. Syntax, whatever is provided rules to syntax, that rule will be followed. Okay, let's see syntax क्या, a formula in Excel a formula in Excel is used to do mathematical calculation. एक फॉर्मूला जो कि एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करने के लिए किया जाता है। फॉर्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विथ द इक्वल साइन। याद रखना, अगर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो ये ऑलवेज स्टार्ट होगा इक्वल से, टाइप्ड इन दिस सेल, और ये टाइप्ड किस में करना होगा, टाइप सेल, फॉलोड बाय योर कैलकुलेशन। जैसे यू क्लेम दिस सेल, कोई भी एक सेल ले लो, by selecting it and type the equal sign, तो उसके बाद इक्वल साइन करना बहुत जरूरी है, ये ऑटोमेटिक, ठीक है। तो क्रिएटिंग फॉर्मूलाज स्टेप बाय स्टेप, सिलेक्ट करना है सेल को, टाइप करना है इक्वल साइन, देन सिलेक्ट द सेल और टाइप वैल्यू। उसके बाद जैसे मैं मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक ये सिलेक्ट किया, तो उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस, फिर मैं ये चाहता हूँ, अब चाहता हूँ कि आंसर दे, तो क्या देगा ये, 320, 320, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो पहले कोई भी सिलेक्ट करना है एक से, उसके बाद इक्वल साइन देना है, इसके बाद जैसे कोई भी अगर एक नंबर है उसको नाम चाहते हो सिर्फ याद है, ओके।
enter an arithmetic operator, select another cell or type value, press enter. For example, 1 plus 1, we have seen this. Okay. The value of cell is communicated by reference value, for example, A1 using formulas with cells. You can type values to cells and use them in your formulas. यानी वैल्यूज को सेल्स में टाइप किया जा सकता है और उसे यूज किया जाता है फॉर्मूलाज में यूज किया जा सकता है. Let's type some dummy values to get started. Dummy value. Double click the cells to type values into them. Go ahead and जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ इसको सिलेक्ट करो. कौन जैसे ये A2 पर है ना, A2 यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ A2 हो गया. या फिर A3 कर 3 फिर ब्रैकेट में क्या आना चाहिए 400. देखिए इक्वल साइन डिडक्ट. अब ये वर्क करेगा. ये क्या करेगा कि ए थ्री लोकेशन दे दिया हमने कि ए थ्री सेल में ये 400 पुट कर देगा. डिडक्ट वर्क. मूविंग और डिलीटिंग सेल्स कॉस्ट और A1 या फिर A3 से इक्वल साइन A1 या फिर A4 उसके बाद 3 स्टिल प्रॉब्लम. Do you want to accept this correction? We found a typo. So यहाँ पर आना चाहिए A4 let's type some. Double click the cells to type A1. Type values by selecting a cell. अब नेक्स्ट है यू हैव नेक्स्ट है टाइप वैल्यूज बाय सिलेक्टिंग सेल. जैसे कोई एक सेल क्रिएट टाइप किया सिलेक्ट किया क्लेम इट बाय एंटरिंग द इक्वल साइन. ठीक है इक्वल साइन. उसके बाद देन टाइप योर वैल्यू कोई भी वैल्यू. फॉर एग्जांपल हम 300 ही अप्लाई कर. फिर उसके बाद एंटर. तो ये यहाँ पर आ गया. ओके ये है 635.
So here is how to do it step by step. Select the C1. Okay, sign, left click, the value minus sign. Okay. This is our in this three, then okay. Now look at over. I selected C1 or C4, then equal sign, and I will select this one, this second. Word, and left click. So this two has been selected. Hold on. Equal sign, then our A1, then plus, then uh, second value is. Now hit enter. Should it work or not? It worked. It worked. इसका मतलब यहाँ एक चीज we learned is that कि जैसे कोई भी कॉलम है, let me delete all this. जैसे यहाँ पर है 2 है, 20 है, फिर 33 है, 40 है, 10 है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इन सब का सम हो जाए और इसमें या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि इक्वल का कि इक्वल मैंने इसलिए अप्लाई किया बिकॉज आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूलाज और फंक्शंस। फिर इसके बाद एक होता है सम नाम का जैसे कि मैं सम करना चाहता हूँ फिर इसके बाद ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या क्या वैल्यू, ये वैल्यू आना चाहिए, ये वैल्यू। ओके, क्या इसने काम किया? यस। 20, 30, 50, 50, 100, 100, 50, 50, 100, 100, इसने काम किया, किया काम। यानी मैंने पहले सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद इक्वल का साइन, उसके बाद सम चाहता था, सम मैंने सिंटैक्स यूज किया, उसके बाद जिस जिस सेल को मैं यूज करना लाना चाहता हूँ उसमें मैंने उसे सिलेक्ट किया और फिर एंटर प्रेस किया। दैट इज हाउ इट वर्क्स। द फॉर्मूला कैन बी टाइप्ड डायरेक्टली विदाउट क्लिकिंग द सेल्स। हम अगर सेल्स को क्लिक ना भी करें तो वो ऑटोमेटिकली उसमें दिखाएगा द टाइप्ड फॉर्मूला वुड बी द सेम एज द वैल्यू। इस तरह सिलेक्ट होता है। अच्छा, ये हो गया। और एक दूसरा है क्या कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आए ये डी में से सी को घटे, ठीक है, ये वैल्यू घटाए इसमें से। तो वन थिंग इज कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, D5 सिलेक्ट हुआ, मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो माइनस अप्लाई, फिर उसके बाद ये
अब ये रिटर्न वैल्यू देगा कितना, 7 देना चाहिए। लेट्स से 7 आया अभी। ये हो गया सेकेंड तरीका, दूसरा तरीका। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा हम रिटर्न वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा चमत्कार या फिर कह सकते हो कि कोडिंग किया गया है या फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे मैं 1 टाइप करते जा रहा हूँ, ठीक है, 1 टाइप करते जा रहा हूँ, 2 टाइप किया। अब इस तरह मैं सिलेक्ट करूँगा, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, फिर इस पर एक इंस्ट्रक्शन मिल गया कि मैं एक नेचुरल नंबर लेना चाह रहा हूँ। तो इसने नेचुरल नंबर नहीं दिया, तो सेड मैंने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया था, अब सिलेक्ट होगा। इस तरह 1 1 सिर्फ सिलेक्ट होता जाएगा, 1 1, क्योंकि ये सिर्फ एक सिलेक्ट। आप देखते हैं काम। देख देख I am forgetting। अच्छा कोई कहीं पर फंक्शन या फॉर्मूला यूज हुआ है तो यहाँ पर सब शो कर देगा कि क्या फंक्शन यूज हुआ। यहाँ पर कोई फंक्शन यूज नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख देगा डायरेक्ट वैल्यू जो है। कि अगर कहीं फॉर्मूला यूज हुआ तो यहाँ पर ये शो कर देगा। ओके। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर हम स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेस किया जा सकता है। यहाँ से भी हम कम ज़्यादा स्पेस कर सकते हैं। इसको मैं पर्टिकुलर, जैसे ये मैं चाहता हूँ कि ये पूरा यहाँ तक ब्लैंक है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, इस तरह सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक मर्ज आता है, ये मर्ज सेंटर। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्लैंक हो गया। ऐसा अगर रिक्वायरमेंट है तो हम इस तरह मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप किया जा सकता है कोई भी, जैसे और इसका हम फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज इस तरह से फॉन्ट साइज बढ़ाया जा सकता है। और अगर बोल्ड करना हो तो बोल्ड भी हो जाएगा। और बैक में हम देना चाहते हैं क्या, बैक में जैसे कलर फिल करना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर दिया जा सकता है।
जो कि लुक को हैवी बनाए। फिलहाल के लिए ये डाटा बस को मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है कि हम किस तरह ये बॉक्स इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो वही मर्ज और सेंटर, जैसे अलाइनमेंट में जाना है, मर्ज और सेंटर का यूज करना। ठीक, इससे अलाइनमेंट होगा, ये सेंटर में मर्ज तो हुआ और वो सेंटर में दिखाएगा आपको, लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में अलाइनमेंट। और भी इसकी यूज है, जैसे फिलहाल के लिए इतना काफी है। हाँ, थोड़ा और एक क्रिएट, जैसे कि मुझे सिर्फ इतना स्पेस है, इतना स्पेस, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और अलाइनमेंट पे जाना है और मार्जिन सेंटर पर क्लिक करना है। मर्ज और सेंटर पर क्लिक करना है। इस तरह स्पेस खाली हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका एक बॉर्डर फिल हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है क्या, सेल में जाना है। इसमें नहीं, इसके लिए ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पर इसको बोलते हैं बॉटम बॉर्डर। जिससे टॉप बॉर्डर, ये टॉप में बॉर्डर क्रिएट होगा, लेफ्ट में बॉर्डर क्रिएट होगा, इसमें राइट में, इसमें बॉटम में डाउनवर्ड हो जाए, जैसे लेट में शो, ये जैसे बॉटम में आ गया। इस तरह हम जिधर चाहिए उधर यूज हो सकता है। जैसे टॉप के लिए अपवर्ड है, तो इस तरह ये अपवर्ड में दिखाएगा। ठीक है, अ, दोनों सेलेक्ट है ना। फिर उसी तरह ऑल बोर्ड्स है, ऑल बोर्ड्स में आ गया, चारों तरफ क्रिएट हुए। जैसे मैं इसी को यूज करूँ, तो ये बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर। यार ये तो, ये बॉर्डर का कलर देने के लिए, इसमें और भी कुछ बहुत कुछ है। और फिर इसके बाद है आउटसाइड। इस तरह कलर भी सिलेक्ट किया जा सकता है, बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर का, एवरीथिंग इज ओके। नाउ इसके बाद another example है, let's try one more example, this time let's move the formula a2 minus b1, वही घटाना है a2 b minus b1। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये C5 से घटे B5, पहले प्लस का साइन, C5, 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 देन माइनस, उसके बाद B है ना, B5, B5, जस्ट
press enter and you will see your value will be 13 30. That is how it works. इंसर्ट हम यहाँ से और कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है. One by one we will see. Then next you can make formulas with all four arithmetic operations. जो बेसिक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव सीन. नाउ इट्स टाइम टू यूज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं और डिवीजन के लिए सिंबल. इसमें वो वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है स्टार, और डिवीजन के लिए तो ये यूज होता है. अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल ऐड माइनस सिंपल और मल्टीप्लाई ये. अच्छा लेट्स सी. जैसे मैं यहाँ पर कुछ मैं चाहता हूँ कि या फिर यहाँ पर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें. तो एक तो दो मेरे पास ऑप्शन है राइट में कि मैं सिंपल इक्वल साइन दूंगा और उसके बाद ये सेलेक्ट करूँगा. तो उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन चाहता हूँ. मल्टीप्लिकेशन उसके बाद नेक्स्ट सिंबल. अब ये दोनों मल्टीप्लाई जैसे एंटर प्रेस होगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा. जैसे 22 जा 40 होता है 40 आंसर आ जाएगा. ये था कि बाय सेलेक्टिंग सेल था. एक होता है बाय पुटिंग वैल्यूज. तो मैं जैसे इक्वल साइन उसके बाद क्या है A5 फिर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ स्टार. उसके बाद कितना से करना चाहता हूँ तो 33 से तो C3 C5 तो C उसके बाद 5 then press enter 66. दैट इज हाउ इट वर्क्स. ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए. फिर इसके बाद है डिवीजन. मैं चाहता हूँ कि 20 को 2 से डिवाइड करो. 20 को 2 से डिवाइड करो. तो इस केस में तो या तो पहले इक्वल साइन कंपलसरी है. उसके बाद 20 को मैं चाहता हूँ 2 से. पहले तो सिंपल देना होगा डिवीजन का. फिर इसके बाद अभी ये रिटर्न में 10 वैल्यू आएगा. 10 वैल्यू. दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके वन मोर. हाँ इस बार बाय टाइपिंग जैसे इक्वल साइन उसके बाद 40 को बाय 10 से तो D5 डिवीजन कितना से E5 से A5 से रिटर्न वैल्यू 4. That's it. In the next chapter, you will learn about ranges and how data can be moved in this shift. वो नेक्स्ट चैप्टर में हम रेंजेस को लेकर पढ़ेंगे और कैसे हम डाटा को मूव कर सकते हैं एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में. इसमें हमने ये 4 बेसिक ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन एज अ फॉर्मूला यूज करना जाना. टेस्ट योरसेल्फ विथ एक्सरसाइज. Now let's move towards the ranges. Range is an important part of Excel because it allows you to work with the selection of the cells. Maybe you didn't understand. No problem. Even I also did not get clarity. There are 4 different operations for selection. पहला क्या सिलेक्टिंग ए सेल, दूसरा क्या सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स और तीसरा क्या सिलेक्टिंग इक्वल, चौथा क्या सिलेक्टिंग रो. जैसे कि मैं एक सेल यहाँ पर सिलेक्ट, ये तो एक सेल को मैंने सिलेक्ट किया.
एक हो सकता है क्या, मैं मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करूँ, इस तरह सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह कर सकता हूँ, इस तरह सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल ऑप्शन आया मल्टीपल ऑप्शन। और कॉलम की बात आया, ये कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये पूरी तरह से कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। मैं एक कॉलम चाहता हूँ तो एक कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और मैं रो चाहता हूँ तो रो इस तरह सिलेक्ट हो जाएगा, तो रो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। इसमें हाइट बता रहे कितना हाइट है, इसके पिक्सल्स में भी ऐसा कितना है, दोनों के बीच में हाइट है, पहला लाइन से इन दोनों के बीच में कितना हाइट है वो बता रहा है। तो ये सब हम जानते ही हैं, कैसे एक सिलेक्ट करें, सेल को सिलेक्ट करें, मल्टीपल सेल कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कॉलम कैसे सिलेक्ट किया, जैसे ये पूरा कॉलम से सिलेक्ट हो जाएगा, मेन कॉलम को सिलेक्ट करें। Before having a look at the different operations or for selection, we will introduce the name box. The name box, the name box shows you the reference of which cell or range you have selected. You have selected. It can also be used to select cells or ranges by typing their values. You will learn more about the name box later in the chapter. Selecting a cell. Now let's start with the first selecting cell. Cells are selected by clicking. जहाँ भी क्लिक करेंगे सेल सेलेक्ट हो जाएगा। विद द लेफ्ट माउस, माउस के लेफ्ट साइड से क्लिक करेंगे और बाएं नेविगेटिंग, हम नेविगेट करते हुए भी इस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। टैब्स का भी काम वही होता है नेविगेट, लेकिन ये राइट की साइड जाता है, राइट साइड, राइट साइड। एंटर से भी, एंटर से क्या होगा, डाउनवर्ड, बाय डिफॉल्ट एंटर डाउनवर्ड। याद रहे टैब जाता है राइट साइड, एंटर जाएगा डाउनवर्ड, और अगर चारों साइड का डायरेक्शन चाहते हैं एरो की काम है, एरो की। फिर उसके बाद है सेल सांस सेलेक्टेड, ओके, इट इज इजीएस्ट टू यूज द माउस टू सेलेक्ट सेल। हाँ, सेलेक्ट सेल्स, सेल को सिलेक्ट करने के लिए माउस बहुत ही आसान है, माउस का यूज कर। टू सेलेक्ट सेल A1, जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट A1 पे चल जाएंगे, क्लिक ऑन इट। सेलेक्ट मल्टीपल सेल, जैसे मोर देन वन सेल कैन बी सिलेक्टेड बाय प्रेसिंग और होल्डिंग डाउन कंट्रोल। एक चीज यहाँ पर नहीं होती है, जैसे एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करना हो, जैसे मैं यूजुअली क्या करता हूँ, इससे मैंने यहाँ पर ऐसे किया, फिर इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस तरह करता हूँ, या फिर डाउनवर्ड में सिलेक्ट करना हो मुझे तो लगता है इसको मैं इस तरह से उठाऊंगा, यानी मैं सेल को भी इधर उधर कर सकता हूँ, जैसे 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 ये वन है तो वन को मैं इस तरह मैं इधर ला सकता हूँ, ये देखो ये इस तरह सेलेक्ट हुआ कॉलम्स, गॉट इट। अच्छा, इसमें वन मोर थिंग क्या है कि बाय प्रेसिंग और होल्डिंग डाउन, डाउन कंट्रोल और कमांड एंड लेफ्ट क्लिकिंग द सेल्स, जैसे मान लो मैंने इसे क्लिक किया, फिर कंट्रोल क्लिक किया, फिर लेफ्ट क्लिकिंग द सेल्स, इस तरह मैं क्लिक करते जाऊंगा, जो जो मैं चाहता हूँ वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। एक तो कोई भी जैसे कंट्रोल प्रेस कर लो, फिर उसके बाद कोई भी सिलेक्ट करना चाहता है उस पर आने क्लिक कर। Once finished with the selecting, you can get the out of control, control से फिर वापस आ सकते
लेट्स ट्राई एन एग्जांपल, सिलेक्ट दी सेल्स, जैसे A7 A5 पर दिया है, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये तो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया लेकिन अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो कंट्रोल इस पर प्रेस करना है, इस पर क्लिक कर देना, फिर इसको क्लिक कर देना, फिर इसको, फिर जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। हाँ, उसके बाद है सिलेक्टिंग ए कॉलम। ये कॉलम है ABCD और ये 1 2 3 है, ये रोज है। तो सिलेक्ट कॉलम ए, सिर्फ हम कोई भी एक पार्ट को, जैसे मैं एक ही को चाहता हूँ तो इसको क्लिक करूंगा तो ये जितना भी एफ में कॉलम सभी सेल्स हैं वो सभी को सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह मैं अगर एट रो को क्लिक करूंगा तो एट रो में जितने भी सेल्स हैं उस सबको सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। इस तरह हम सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्टिंग ए रो, या ये ऐप से सिलेक्टिंग द एंटायर शीट, सब शीट को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस दिस, क्लिक ऑन इट, ये सभी सिलेक्ट हो गए। प्रिंट करने के लिए सभी को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। The entire spreadsheet can be selected by clicking the triangle, a triangle view in the top left corner of the spreadsheet. Now the whole spreadsheet is selected. Yes, you can also select the entire spreadsheet by pressing Ctrl A. Ctrl A करोगे सब प्रेस हो, सब तो प्रेस नहीं हुआ, अब प्रेस हो। वो क्या रहा कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो ये सिर्फ इतना एरिया को कवर करा। मैं अगर यहाँ पर रहता हूँ तो ये कितना एरिया कवर करेगा, इसके आसपास के वाले इसको कवर करेगा। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर इसके आसपास के सिलेक्ट करेगा, इतना सिलेक्ट करेगा। अच्छा, इतना इनफ है। फिर है सिलेक्शन फॉर रेंज, सिलेक्शन ऑफ रेंज। Selection of a cell ranges has many use areas and it is one of the most important concept of Excel. एक तरफ से most concept important concept है ranges को लेकर। Do not think too much about how it is used with values. You will learn about this in a later chapter. For now, let's focus on how to select ranges. अभी हमें फोकस करना है कि रेंजेस को कैसे सिलेक्ट करें। There are two ways to select a range of cells, जैसे नेम बॉक्स है या फिर drag to mark the range. The easiest way is a drag and mark. Let's keep it simple and start it. How to drag and make a range step by step. Select a cell, कोई भी select करो एक cell को, left click it, left click and hold the mouse button. इसकी बात कर रहा है, इस तरह से सिलेक्ट करने की। Move your mouse pointer over the range that you want to select. The range that is marked will turn gray. ये ग्रे कलर में यानी इस तरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक रेंज हो गया, फिर इस तरह का रेंज, इस तरह का रेंज, इस तरह, और ग्रे कलर का फिल हो जाएगा इस तरह। इसको बोल रहा है रेंज। ठीक है। करना क्या है, माउस का लेफ्ट साइड क्लिक करना है और इधर उधर ड्रॉ करना है, मूव करना है माउस को। ठीक है। नेक्स्ट है फिल, एक्सेल फिल। इसमें भी क्या है, फिलिंग और डबल क्लिक टू फिल। क्या पहला, फिलिंग मेक्स योर लाइफ इजियर एंड इजी एंड इज यूज्ड टू फिल रेंजेस with values.
so that you do not have to type manual entries. Filling can be used for copying sequence, dates, functions. For now, do not think of a function. We will cover that in a later chapter. How to fill? ये कोई select word, ठीक है. Click the fill icon and hold down the left mouse, drag and mark red, ठीक है. In this example, cell A1 was selected and the range A1 से गया है A10 तक गया है रेंज. और इसमें क्या गया, ये I11 से I16 तक गया was marked. Now that we have learned how to fill, इस तरह हम fill कर सकते. Fill copies. It can be used for both numbers and letters. Copies करने का मतलब है कि जैसे ये 4 है, उसको अगर हम सिंपल से जाएं, 4, लेकिन दो कम से कम यूज होता है. So 11 इस तरह ये रिपीट हो. जैसे ये 4 ही था तो मैं इसको क्या करूँ, इस तरह ये रिपीट हो. ठीक है, मैंने इसका कॉपीज कर देना. कॉपीज करने के लिए क्या है कि कोई एक नंबर सिलेक्ट करो, जैसे 10 है, और इसको ड्रैग कर दो डाउनवर्ड इधर की साइड में, और जितना ये सेलेक्ट करेगा उतना ये कॉपीज, जैसे 10 को ये कॉपीज करो, उतना कॉपीज हो गया, इसका कॉपीज आ गया. The same principle goes for text. सेम ये टेक्स्ट के लिए भी अप्लाई होता है. जैसे एक्सेल, अब इसको हम वही यूज करें, इस तरह ये रिपीट करेगा. जितना आपने सिलेक्टेड किया उतना सिलेक्टेड सेल में ये रिपीट करेगा. रिपीट के लिए था फिल सीक्वेंस. Filling can be used to create sequence, and a sequence is an order or pattern. अब ये देखते हैं थोड़ा सा. जैसे चेंज द वैल्यूज ऑफ A2 2 तक, फिर A2 में है 2 से 2, यहाँ 1 था, बस उसको 2 में चेंज कर दिया. जैसे ये 1 है, फिर उसके बाद 2 है. We now have two different values in this cell, एक 1 है, एक 2 है. now fill A से 10 तक अगेन. अब क्या करना है, इसको हम फिल करेंगे ना 1 से लेकर 10 तक. ये कॉपी कर दिया, इसने सिर्फ इसको समझा. मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ. ये सिलेक्ट हो जाए, ये भी सिलेक्ट हो जाए. अब कॉपी हो. फिल अगेन 8 to 10. अब काम तो हो क्या रहा था कि ये 1 2 3 था, तो मैंने ये कंट्रोल प्रेस करना. अब तो यहाँ कंट्रोल प्रेस करना होगा, फिर उसको ड्रैग करना होगा. ये इस तरह आप समझेगा. इस तरह हम यहाँ पर टेबल्स भी दे सकते हैं. जैसे यहाँ 2 है, 2, ये तो बैकवर्ड है. फिर 4 है, 4. अब ये क्या समझेगा, या फिर 6 है, ये समझेगा क्या कि हमने इसे दो दो का डिफरेंस दिया है, दो दो का डिफरेंस दिया है, ये समझेगा. कंट्रोल प्रेस करना जरूरी है. फिर इसके बाद हम इसे ड्रैग करें और उतना तक फिल कर दें. 1 मिनट. 2 3 4 5 6 7.
कुछ गलत हुआ। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। Say it later. Hold him down shift before you fill the ring. फिर उसी तरह क्या है, 2 4 का होता है, 2 4 का। से यहाँ पर 2 है, उसके बाद 4। अब इसको सिलेक्ट करना है हमें, और ये सिलेक्ट हुआ, लेकिन let's create another sequence type A1 and A2। फिर उसके बाद ड्रैग करना है, फिल करना है एस लेके 10 तक। मैंने इसे फिल किया। This is enough for now.